دنیا میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہمیں اس دنیا سے چلا جانا ہے، کہ یہ دنیا فانی ہے۔ کیونکہ اگر یہ بات ہم سوچے ہوتے، اگر ہم یہ بات اپنے اوپر لاتے، تو ہم کبھی اس دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ کیوں؟ جب یہی مسلمانوں کا ذکر 1400 سال پہلے مسلمانوں کا، جب ان کے اتہاس اور ان کے تاریخ میں جب ان کی باتوں کو پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ دنیا کے لیے نہیں آئے تھے، کیونکہ صرف ان کا جو ذہن میں جو بات چلتی تھی وہ صرف آخرت کی بات چلتی تھی، کہ ہم اس دنیا سے کب جائیں اور آخرت میں ہمیں جنت مل جائے۔ لیکن آج کے مسلمانوں کا جب ان سے تولنا کرتے ہیں تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہم مسلمان آخرت کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے آئے ہیں، صرف دنیا کمانا چاہتے ہیں، صرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا ہماری مٹھی میں آ جائے۔ مسلمانوں غور سے سنو کہ آج دور کے اندر جو ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں، ہمارے اوپر فتنے آ رہے ہیں، یہ ہمارے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے اور ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ تو آئیے کہ فتنوں کے دور میں مسلمانوں کا یا پھر مسلمانوں سے بڑھ کر کے اگر جائیں گے ایک قدم، تو علماؤں کا کردار کیا ہے اس فتنوں کے دور میں؟ ہمیں ان کے ایمان کا جائزہ لینا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہمارے مسلمان اور اس میں رہنے والے علماء اکرام اور اس پر چلنے والے، دین پر چلنے والے عابد لوگ یعنی عبادت کرنے والے لوگوں کا جائزہ لینا ہے کہ آخر ان فتنوں میں اپنے آپ کو کس طور پر استعمال کر رہا ہے، اپنے آپ کو اپنے ایمان کو کہاں تک محفوظ رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم تمہیں خیر اور شر دونوں کے ساتھ آزمائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی صرف جو ہے مصیبتوں میں ڈال کر کے آزماتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو خوشی دے کر کے بھی آزماتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی دوسرے مقام پر فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہتے ہیں کہ ہم تمہیں کبھی بھوک اور خوف کے ذریعے سے آزماتے ہیں، اور کبھی ہم تمہیں اپنے جان اپنے مال میں اور اپنے پھلوں میں کمی کر کے ہم تمہیں آزماتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر حال میں ہمارا امتحان لے کر کے ہی چھوڑے گا۔ جب تک ہم دنیا میں رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی دونوں پہلو میں ہمارا امتحان لے گا، ہمارا جو ہے امتحان لے کر کے ہمیں دیکھنا چاہے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دونوں طریقے سے اللہ تبارک و تعالی امتحان کیوں لیتا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کے اندر فرمایا ہے کہ عجبا للامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے، بڑا عجیب ہے، دونوں ہاتھوں میں لڈو۔ کیسے؟ کہتے ہیں کہ عجبا للامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے، جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے، اور جب انہیں کوئی خوشی نصیب ہوتی ہے تو اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ گویا کہ دونوں حالتوں میں یہ مومنوں کے ہاتھ میں لڈو ہیں، اور یہ مومن کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ یہ مومن کتنا بڑا مقام ہے، سوچئے ذرا کہ یہ مومن جو ہیں، یہ مومنوں کے لیے دونوں طریقے سے دونوں راستوں پر فائدے ہیں۔ یعنی جب کوئی انہیں پر مصیبتیں آتی ہیں، جب کوئی انہیں تکلیف پہنچتی ہے تو صرف اور صرف کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے نہیں ہو سکتا ہے، یہ پریشانی جتنی بھی آتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ اس کو یہ علم ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ لیکن جب وہی انسان جب یہ کہہ دے کہ نہیں، مصیبت تو یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، فنا کی وجہ سے ہیں، فنا نے ایسی بات کہی تھی، فنا نے ایسا معاملہ کیا تھا جس کی وجہ سے ہم پر مصیبتیں آئی ہے۔ میرے بھائیوں، ایسی بات نہیں ہے جو ایسا کسی کے اوپر جب داغتا ہے، کسی کے اوپر جب یہ تہمت لگاتا ہے، گویا کہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے وہ شخص۔
कोई भी जब मुसीबतें आती हैं, कोई परेशानियां लाहिक होती हैं, तो ये अल्लाह की तरफ से होता है, किसी इंसान की तरफ से नहीं होता है। और जब इस पर कोई मोमिन होगा जो अल्लाह और उसके रसूल पर चलने वाला होगा, तो यकीनन वो कहेगा कि ये अल्लाह की तरफ से है, ये कभी किसी के दूसरे के ऊपर तोहमत नहीं लगाएगा मेरे भाई। तो ये मोमिन, तो इसमें उसकी भलाई है। और जब उन्हें कोई खुशी नसीब होती है तो उस पर वो शुक्र अदा करता है कि अल्लाह की तरफ से है, ये अल्लाह ने मुझे इस नियामतों से नवाजा है। किसी इंसान का ये मजाल नहीं है कोई इंसान किसी इंसान को खुश कर दे। हाँ, वक्त के तौर पर हो सकता है कि उसके मदद कर दे, लेकिन जो कुछ भी होता है उसकी जिंदगी में, जो कुछ भी खुशी लाहिक होती है, वो अल्लाह की तरफ से है। बहुत सारे लोग एहसान जितलाते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं अरे भाई क्या तुम मेरा एहसान भूल गया, फला काम मेरे जरिए से हुआ है, मैं किया हूं। ये अपनी अनानियत दिखाते हैं और कहते हैं कि अगर ये काम मैं नहीं करता तो तुम्हारा मजाल नहीं था कि तुम काम कर लेता। मेरे भाइयों, ये बात आप कहने से पहले ये बात जरूर कहें कि अल्लाह का हुक्म था, लेकिन अल्लाह के हुक्म से काम हुआ है, लेकिन मैंने दुनियावी तौर पर मैंने तुम्हारा थोड़ा मदद किया हूं। ऐसा नहीं कि आपने पूरी जिम्मेदारी लेकर के उसके काम आपने किए, बल्कि अल्लाह का हुक्म होता है तभी जाकर के किसी इंसान के जरिए से अल्लाह ताला वो काम करवाता है। मेरे भाइयों, तो इन अहादीस, इन आयतों और हदीस से बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हर हाल में, मुसीबतों में हमें अल्लाह तबारक व तआला डालेगा और हमारा इम्तिहान लेगा। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि कौन कौन से ऐसे फितने हैं जो हम उस पर गिर चुके हैं और वो फितने पर हम जो है बिल्कुल वैसे ही हमारे ऊपर चल रहा है। तो मेरे भाइयों, उनमें से सबसे पहली चीज़ ये है कि जिस फितनों में हम गिरे हुए हैं वो माल और औलाद का फितना है। वो माल और औलाद, जिस माल के पीछे हम रातों दिन मेहनतें करते हैं, जिस औलाद के लिए रातों दिन जायज नाजायज कमा करके हम लाते हैं, बच्चों की परवरिश के लिए, बच्चों के अच्छे कपड़े और अच्छे मकान के लिए रातों दिन मेहनत करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें माल और उन्हें औलाद को फितना कहा है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, ये तुम्हारी औलाद, ये तुम्हारे माल फितना है। क्यों फितना? ये इसकी फितना की वजाहत क्या है? अल्लाह के नबी जनाब अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है कि एक मर्तबा सुलह हुदैबिया का मौका था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा कि सहाबा इकराम चलो तुम्हें जंग के लिए जाना है। तो कुछ लोग अरबी यानी देहाती लोग पीछे रह गए थे। यानी पीछे रहने की वजह क्या थी? उन लोगों ने यह कहा था कि आप लोग आगे चलें, हमारे पास घोड़सवारी है, हम उस पर चढ़ते हुए तेज रफ्तार होकर के हम शरीक हो जाएंगे। लेकिन हाल ये हुआ कि उनके माल और उनके औलादों ने मशगूल कर रखा था। उनके पास औलाद थे, उनके पास माल और दौलत की फरावानी थी, जिसकी मशगूलियत से वो पीछे रह गए थे। लेकिन जब वहां से वापस आने वाले थे, यानी जंग से लोग वापस आ रहे थे, तो इन लोगों ने बहाना किया कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछेंगे कि बताओ तुम जो है जंग से पीछे क्यों रह गए थे? तो उन लोगों ने कहा कि हमारे माल और हमारे औलाद ने हमें जो गाफिल कर रखा था। कभी औलाद के पास जाता, कभी माल के पास जाता, इसी तरह करते करते वक्त निकल गया और जा नहीं सका। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की आयत नाजिल कर दी, सयक़ूलु लकल मुखल्लफूना सगलतना अमवालुना व अहलुना फस्तगफिर लना यक़ूलूना बिअलसिनतिहिम मा लैसा फी क़ुलूबिहिम। कहते हैं कि अनकरीब जिन लोगों ने बहाना किए थे, यानी ये बात के हमारे माल और औलादों ने हमें गाफिल कर रखा था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अगर तुम्हें हकीकत मानों में तुम्हारे माल और औलादों ने तुम्हें रोके रखा था, अगर तो याद रखो यही माल और औलाद तुम्हारे लिए फितना है। इसी तरह अगर हमारे माल से, अगर हमें नमाज से रोके, अगर हमारा माल की मोहब्बत की वजह से ज़कात से रोके, हमारे माल से इतनी मोहब्बत है कि हम अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते हैं, तो याद रखे यही माल आपके लिए फितना है। जो माल आप कैद करके समेट करके रखते हैं और ये कहते हैं कि हमारा माल है, इसमें किसी का हक नहीं है, इसमें किसी का हिस्सा नहीं है, तो याद रखे यही माल आपके लिए फितना है। और जिस माल को जिस बच्चों की लाभ कर रहे हैं, तो जमा कर रहे हैं, और वही बच्चे बड़े होकर के बिगड़ते जा रहे हैं, वही बच्चे शराबी कबाबी होते जा रहे हैं, तो याद रखे
वही औलाद आपके लिए फितना है। चाहे आप कितनों भी कमा लीजिए, कितनों भी मेहनत कर लीजिए, आपको कुछ फायदा नहीं पहुंचेगा मेरे भाई। उसके बाद ऐसे बहुत सारे हम फितनों में घिरे हुए हैं। उसी में से एक फितना जो मीडिया का फितना है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया हो, हर शख्स किसी ना किसी मीडिया में मुलव्विस हैं। मेरे भाइयों, आज इस मीडिया ने ऐसा इनकलाब बर्पा कर रखा है कि अल्लाह की पनाह अब किसी बात का पर्दा नहीं रहा है। चाहे वो छोटे हों, बड़े हों, औरत हो या मर्द, हर शख्स किसी ना किसी जो है सोशल मीडिया में किसी ना किसी तरीके से मुलव्विस हैं। लेकिन हमें इस चीज का एहसास नहीं होता। हमारे छोटे छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल, हमारे माँ और बहनों के हाथों में मोबाइल, हमारे नौजवान के हाथों में मोबाइल, और इस मोबाइल का गलत इस्तेमाल करने की वजह से हमारे कितने घर उजड़ गए, हमारे कितने बहनें घर से बेघर हो गई, हमारे कितने माएँ घरों से फरार हो गई है, हमारे कितने बच्चे हमसे जुदा हो चुके हैं, हमारे कितने वालिदैन हमसे नफरत कर चुके हैं। मेरे भाइयों, इस मोबाइल को हम यूं ही समझते हैं, एक खिलौना समझते हैं। और अल्लाह की पनाह ये बात याद रखें कि इस मोबाइल में जुआ का जो जब से इसका ये हुआ है, चाहे वो ऐप के जरिए से हो, हमारे अक्सर 99 के 99 लोग उसी मोबाइल के जरिए से जुआ खेलते हैं और जुआ खेल करके अपने घरों को बर्बाद कर रहे हैं। चाहे इसमें हर शख्स शामिल है, चाहे पढ़ने वाले तालिब इल्म हो या गांव के रहने वाले उलमा इकराम हो, चाहे किसी तरह का भी लोग हो, हर शख्स इस तरह की जुआ में मुलव्विस हैं और अपने आप को कह रहे हैं कि हम दीन पर चलने वाले लोग हैं, अल्लाह और उसके रसूल पर चलने वाले लोग हैं। मेरे भाइयों, ये मीडिया का इस्तेमाल आखिर हमारे बच्चे, हमारे माएँ, हमारे बहनें क्यों करते हुए नजर आते हैं? हमारे बच्चे का आप क्या समझ रहे हैं कि हमारे बच्चे को मोबाइल चलाना आ गया, हमारे माएँ मोबाइल चलाना शुरू कर दी और हम खुश हो रहे हैं? वाह, देखो पहले के जमाने के लोग बेवकूफ थे, हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, हमारे माएँ और बहनें होशियार हो गए। ये कौन सा तरीका है? आप नहीं समझ रहे हैं कि आपके उनके भविष्य को आप बर्बाद कर रहे हैं उनके हाथों में मोबाइल दे करके। इसी तरह इस मीडिया से भी हमें बचना है, इन इलेक्ट्रॉनिक और सोशल प्रिंट मीडिया से भी हमें अपने बच्चों को दूर रखना है। मेरे भाइयों, और भी बहुत सारे बातें हैं कि छोटे छोटे बच्चे डांस करते हुए मोबाइलों पर छोड़ते हैं, फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं और हमारे वालिदैन गार्जियन हजरात देख करके खुश होते हैं, वाह हमारा बच्चा डांस करना आ गया। कितनी मतलब अफसोस की बात है, कितनी शर्मिंदगी की बात है। मेरे भाइयों, आखिर हमारी गैरत कहाँ गई है कि हम वालिदैन इसीलिए हैं कि हमारे बच्चे डांस करें, क्या इसीलिए वालिदैन बने हैं कि हमारे बच्चे, हमारे बेटियां जो सोशल मीडिया पर नाचती हुई नजर आए? मेरे भाई, अफसोस की बात है और शर्मिंदगी की बात है जिसकी बिना पर आज हम बर्बाद हो रहे हैं। मेरे भाइयों, इसी तरीके से आज हमारे इस्लामी मुल्कों में और इस्लामी गाँव में बद अमनी का फितना, यानी बद अमली जो हम पर, यानी जो हमारे समाज के अंदर, हमारे गांव के अंदर मुसलमान हैं लेकिन उसमें अमन अमान नहीं है, चैन सुकून नहीं है। क्यों नहीं है मेरे भाइयों? इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह यह है कि आज हम उलमा, हम दीन से दूर हो चुके हैं। मेरे भाइयों, आज हम उलमा जो बड़े होकर के लोगों को फतवा फराइज करते हुए नजर आते हैं, लोगों को मसला मसाइल की बातें बताते हुए नजर आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर खराबी है तो हमारे उलमा, बहुत सारे ऐसे उलमा इकराम हैं जो गलत काम करते हुए नजर आते हैं और उसको एहसास तक नहीं होता। मेरे भाइयों, और वो उलमा, कुछ ऐसे उलमा हैं, बहुत सारे तो बुराइयां हैं, लेकिन एक बुराई की तरफ मैं इशारा करूंगा कि जिसका ना सर है ना पैर है, ना कुछ शरीयत के अंदर उसका कुछ दखल है, जहेज का मुतालबा। मेरे भाइयों, हर शख्स परेशान है और यह जहेज बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन यह जहेज का रसूमात जो हमारे गांव और समाज में चल रहा है, यह तो हम समझ रहे थे कि हमारे अनपढ़ लोग इसमें शामिल हैं, लेकिन अब हाल यह हो चुका है कि पढ़े लिखे सनद याफ्ता हासिल करने वाले आलिम भी इसी जहेज में मुब्तला है और खुद जो है अपने ससुरालों से गाड़ियां मांगते हैं। यही तक बात नहीं रही है, बल्कि क्या करते हैं, दलाली वाला काम भी करते नजर आते हैं। दलाली किसको कहते हैं? आपकी बेटी की शादी करानी है, अच्छा आपकी बेटी की शादी करानी है, इनसे कुछ बात करते हैं, 3 लाख में फाइनल करते हैं, उसको जाकर के बताते हैं कि 2.5 लाख में 50,000 अपना जेब में जाएगा। ये आलिम लोग हैं। बहुत सारे ऐसे वाकयात
सुनने में आया है कि ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो दाढ़ी टोपी और कुर्ता पैजामा के साथ घूमते हैं, लेकिन जहेज का जब मसला आता है, रोकने के बजाय, उससे दूर रहने के बजाय, उसकी शादी में जाने के बजाय क्या करते हैं, वो दलाली वाला काम करते हैं, दूसरों को खिलाते हैं और अपना भी खाते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब यतक़ारबुज़ ज़मान, जब वक्त मुतकारिब होगा, युक़बज़ुल इल्म, इल्म को उठा लिया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई करके फरमाया था कि जब वक्त मुतकारिब से मुराद यानी वो खबरें जो पहले फैलने में, पहुंचने में 6-6 महीना, साल भर लग जाते थे, लेकिन अभी एक एक खबर हर मिनट के अंदर पूरे गांव में, पूरे दुनिया के अंदर फैल जाती है। कहते हैं अल्लाह के नबी, यतक़ारबुज़ ज़मान, जब वक्त मुतकारिब होगा, यानी खबर तेजी के साथ फैलेगी और बुराइयां आम हो जाएगी, लोगों के अंदर, आलिम और जाहिल के अंदर कोई पहचान नहीं होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युक़बज़ुल इल्म, इल्म को उठा लिया जाएगा। कैसे उठाएगा? ये हाल जब हमारे होंगे, हमारे उलमाओं के होंगे कि उनके उसके नमाज से वो दूर रहेंगे और जो है बहुत सारे चीज़ों से वो अल्लाह के यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो चीज़ करने का हुक्म दिया है उन चीज़ों से दूर रहेंगे और नाफरमानियां करते हुए नजर आएंगे। जाहिल और आलिम में कोई फ़र्क नहीं होगा तो अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह ताला क्या करेगा? इल्म को उठा लेगा। हम लोग कुरान की आयत पढ़ते हैं, कुल हल यस्तविल लदीन यअलमून वल्लदीन ला यअलमून, कह दीजिए जानने वाले और ना जानने वाले कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। लेकिन ये आयत हमारे लिए कहाँ फिट हो रहा है कि जानने वाले से मुराद आलिम हैं, जो लोग सनद याफ्ता यानी 15 साल 14 साल पढ़ करके सनद लेकर के आते हैं, आलिम की फाजिल की डिग्रियां लेकर के आते हैं, गांव में रहते हैं। उनकी जिम्मेदारी तो ये थी कि नबी के वारिस के मुआफिक को काम करते। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, यानी उलमा अंबिया की वारिस हैं। लेकिन कहाँ गए हम उलमा? हम कहाँ गए कि वरासत पाने के बाद आज हम अल्लाह के नबी को भूल बैठे हैं? क्या इसका जवाब दे हमको नहीं देना होगा? क़यामत के दिन अल्लाह की कसम आपको हर चीज़ का जवाब देना होगा। इसीलिए समाज से, गांव से अगर बुराई को दूर भगाना चाहते हैं, समाज से अगर बुराई को दूर रखना चाहते हैं तो उलमा को आगे बढ़ना होगा, उलमा को आगे आना होगा। हत्तल इम्कान जितना कोशिश हो आपको बुराई को दूर रखना होगा। हाँ, ये बात हकीकत है कि इस्लामी हुकूमत नहीं है, हमारे ऊपर जो हुक्मरान हैं वो हमें गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मुसलमानों, कम से कम इतना तो अपने आप ईमान की मजबूती दिखाओ, ईमान का जज्बा दिखाओ कि हमारे घर में होने वाली बुराइयों को तो कम से कम रोक सको। इतना तो हमारे अंदर ताकत होनी चाहिए। अगर हमारे हर गार्जियन हजरात, हर वालिदैन, हर उलमा कराम अगर ये जिम्मेदारी ले ले कि हमारे समाज से, हमारे घर से बुराई को दूर रखेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है कि इंशाअल्लाह घर से और समाज से बुराई दूर होगा। मेरे भाइयों, बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज के अंदर हमारे ऊपर जो मुसीबतें आती हैं, ये फितने पे दर पे जो आते हैं, ये हमारे बुरे अमालों का नतीजा है, बुरे अमाल करतूत का नतीजा है। हम रोना रोते हैं हम पर मुसीबतें क्यों आती है, हम रोना रोते हैं कि अल्लाह ने हम पर ये मुसीबतें क्यों दे रखा है। लेकिन भाइयों, उस मुसीबतों को देखने से पहले हम अपने ईमान का जायज़ा लें, हम अपने ईमान का जायज़ा लें कि हमारा ईमान कहाँ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जब क़यामत कायम होगी, पेशीन गोई करके फरमाया था कि ऐसे लोग दुनिया के अंदर होंगे, ऐसे लोग समाज के अंदर पाए जाएंगे कि शाम के वक्त मोमिन होगा, यानी शाम के वक्त दाढ़ी टोपी कुर्ता के साथ नमाज में होगा, तो कहते हैं कि सुबह के वक्त किसी काफिर वाला काम करते हुए नजर आएगा। और सुबह जब वो मोमिन होगा तो फिर यानी सुबह के वक्त जब वो जो है नमाज रोजा करते हुए नजर आएगा, जब वो अल्लाह के दीन के काम करते हुए देखेंगे। लेकिन जब शाम होगी तो वही आदमी को देखेंगे शराब खानों में, जिनाखोरी में और जो है जुआखोरी में लगा होगा। मेरे भाइयों, ये वक्त आ चुका है, हम अपने आप को, अपने दामन को देखें, हम अपने गरीबान को झांकें कि हम कहाँ हैं। हम ईमान का जायज़ा लेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे अंदर से बुराई खुद ब खुद ख़त्म होगी।